Hello everyone, welcome to the part 4 of this video series on probability distribution. इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड मेन क्वेश्चन एंड ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है. Without wasting any time, let's get started. Identify the random variables as either discrete or continuous in each of the following and write down the range of it. An economist is interested in the number of unemployed graduate in the town of a population of 1 lakh. अभी नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इट हैज टू बी एन इंटीजर ओनली, मतलब या तो 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10.5 2.5 ऐसा नहीं हो सकता है. सो क्लियरली ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड रेंज अगर लिखेगा तो रेंज कैन ईदर बी, मतलब एक्स टेक्स वैल्यूज, it can either be 0 or 1 or 2 or 3, or it can be 1 lakh. 1 lakh is the max value. Great. Amount of syrup prescribed by a physician. Amount of syrup ये क्वांटिटी एक कंटिन्यूअस रेंज में कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है. तो क्योंकि एक रियल नंबर, मतलब इट कैन अज्यूम एनी रियल नंबर एंड देयर आर इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज, दिस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल अमाउंट ऑफ सिरप becomes a continuous random variable. Similarly, the person on high protein diet is interested in the gain of weight in a certain week. So if the random variable is gain of weight, even gain of weight can take any real number value in a certain range, infinite possible values. तो gain of weight भी हमारा continuous random variable ही हो जाएगा. 20 white rats are available for an experiment. 12 rats are male. Scientist randomly selects 5 rats and the number of female rats selected on the specific day are to be seen. Number of female rats, because you have taken 5 rats, number of female rats may either be 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5. So basically discrete random variable, and I just discussed that the range of it, the range of the number of female rats selected will range from 0 1 2 3 4 up to 5. A highway safety group is interested in studying the speed of a car at the checkpoint. Now speed of car, again, it can be anything in a certain interval, it can take any real number values, so infinite possible values are there, which is why the given random variable becomes a continuous random variable. आगे बढ़, sum number 2. Probability distribution of a discrete random variable is given. Determine the value of k. सीधा बात है, total probability equal to 1 आएगा. So the total probability is k plus 2k 3k 6k 10k 15k 21k. So 21k total probability equal to 1, k का वैल्यू आएगा 1 upon 21. Hence find p of x less than equal to 4. p of x less than equal to 4 मतलब p of 1 2 3 and 4 टोटल करेगा 10k आएगा and that makes it 10 upon 21. p of x lying between 2 and 4, p of x lying between 2 and 4 मतलब p of x equal to 3 ही आएगा. Yeah, so p of 3 will be 3k, that makes it 3 by 21, reduce करेगा तो 1 upon 7, and finally p of x greater than equal to 3. This is 1 upon 7, and yes, greater than equal to 3 means 3k 4k 5k 6k, that makes it what, 18k. yes, k को डाल 1 by 21, reduce कर तो ये आ जाएगा 6 upon 7. Great, that's it with sum number 2. Go ahead with sum number 3. The probability distribution is given. Find the probability that x is positive. So p of x greater than 0, that will be 0.25 0.15 and 0.1, because greater than 0 मतलब 1 2 3 का probability, and that probability is 0.25 0.15 and 0.1, और total करेगा तो this is going to be 0.5. Probability that x is non-negative. Non-negative मतलब x greater than equal to 0. इतना तो 0.5 हो ही चुका है, इतना प्लस 0.2 करना होगा, so this will be 0.7. p of x equal to odd. odd के लिए ले ले -3 का probability, that is 0.05 0.15 0.25 and 0.1. ये टोटल करेगा तो आ जाएगा 0.55, and finally they are asking you x is even. So p of x equal to even. We know that total probability 1 आएगा. अगर odd का probability 0.55 है तो even का probability 1 minus 0.55 मतलब 0.45 आएगा. तो actual calculation से भी देख पाएगा, it will be 0.1 0.2 and 0.15 का total.
एड अप कर, द टोटल इज स्टिल इक्वल टू 0.45 ओनली। आगे बढ़, PMF of a random variable is given by a certain formula for x values ranging from 0 to 5. Show that p of x less than equal to 2 is equal to p of x greater than equal to 3. p of x less than equal to 2 मतलब p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of 2। p of 0 निकालेगा तो यहाँ पे x को 0 डाल, दैट इज 5c0 अपॉन 2 पावर 5, 5c0 मतलब 1 अपॉन 2 पावर 5 प्लस p of 1 मतलब 5c1 which is equal to 5 upon 2 power 5, p of 2 मतलब 5c2 upon 2 power 5, 5c2 मतलब 5 into 4 upon 2 into 1 that is 20 upon 2 which is 10 and upon 2 power 5 भी क्वेश्चन में बोला है। टोटल करेगा ये आएगा 16 upon 32 that is 1 by 2। सिमिलरली p of x greater than equal to 3, ये आएगा p of 3 plus p of 4 plus p of 5। P of 3 वापस यहीं से निकाल, 5c3, 5c3 मतलब 5c2, 5c2 का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 10 था, सो 10 अपॉन 2 पावर 5 प्लस P of 4 यहाँ पे डाल 5c4, 5c4 मतलब 5 अपॉन 2 पावर 5 एंड P of 5 मतलब यहाँ पे डाल तो 5c5 1 आएगा एंड अपॉन आएगा 2 पावर 5। वापस टोटल कर 16 by 32 आएगा which is again equal to 1 by 2. So we are finally concluding that p of x less than equal to 2 is equal to p of x greater than equal to 3. Yeah, so that's it with sum number 4. आगे बढ़ sum number 5. Find a and obtain the CDF of x. a के लिए total probability 1 आएगा which means 1 by 20, 3 by 20 plus 1 by 20 इतना होता है 5 by 20 which is 1 by 4 plus इन दोनों को ऐड कर तो 3 है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। सिंप्लीफाई करेगा तो 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, 3 नीचे लेगा तो 1 बाई 4 आएगा एंड ए फाइनली इज 1 बाई 4। फॉर CDF बेसिक तेरे डेफिनेशन याद रख कि CDF जो रहता है, CDF इज P of x लेस देन इक्वल टू x. इट इज ऑल्सो represented by capital Fx. So I'll write x here and px here. वैल्यूज लिख ले 1 2 3 4 5, write it as 1 by 20, 3 by 20। अभी a तेरा 1 by 4 है, सिंप्लीफाई करके लिखना है मतलब by 20 में लिखना है तो यू कैन राइट इट एज 5 by 20। 2a मतलब 10 by 20, 2a मीन्स 1 by 2, 1 by 2 को लिखा 10 by 20 एंड फाइनली 5 का आएगा 1 by 20। fx के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पहला वैल्यू आएगा 1 by 20। वंस अगेन व्हेन आई से f of 2 I mean P of x less than equal to 2 मतलब P of 1 plus P of 2, इन दोनों को ऐड करेगा तो ये आएगा 4 by 20। फिर f of 3 मतलब P of x equal to 1 plus 2 plus 3, यहाँ का टोटल तो ऑलरेडी 4 by 20 था तो यहाँ तक का जो अभी तेरा टोटल आएगा दैट शुड बी 4 by 20 plus 5 by 20 which is 9 by 20। गो अहेड, यहाँ का टोटल आएगा इन सारे नंबर्स का टोटल, so that is 9 by 20 plus 10 by 20 which is 19 by 20 and finally यहाँ पे आएगा 19 by 20 plus 1 by 20 which is equal to 20 by 20 and that is equal to 1. So ये जो आखिरी कॉलम है वो तेरा आएगा CDF of x. Go ahead, sum number 6. A fair coin is tossed 4 times. Let x denote the number of heads. Let x denotes the number of heads obtained. Write down the probability distribution of x and also find a formula to write PMF of x. Simple sum. अगर मैं कहता हूं that x मतलब random variable x denotes the number of heads and a coin is tossed 4 times, I can either have 0 head, 1 head, 2 heads, 3 heads or 4 heads. तो x के possible values are 0, 1, 2, 3, 4. And when I want to write P of x equal to x, in how many ways can I have 0 heads? Basically that is only one way and that one way is tail 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 tail. हर एक का आउटकम 1 by 2 मतलब हर एक का प्रोबेबिलिटी 1 by 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 by 2 पावर 4 which is 1 by 16 आएगा। So x equal to 0 का प्रोबेबिलिटी 1 by 16। वन हेड कितने वे में आएगा? So that is h t t t or you can have t h t t or it can become t t h t or it can become t t t h. Each of them will again have the outcome 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 which is 1 by 16
एंड 4 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 4/16। थोड़ा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन याद है तो यू कैन हैव 2 हेड्स आउट ऑफ 4 टॉसेस इन 4C2 वेज। तो ये 4C2 वेज में तेरा हेड आएगा। हाफ पावर 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हाफ पावर 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ये फॉर्मेट काम में आएगा टू राइट द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ हेड्स। कैलकुलेट करेगा तो 4C2 का आंसर आएगा 4 into 3 12 upon 2 which is 6 upon 2 power 4 which is 16. Probability of getting 3 heads can come in 4C3 ways. Half power 3 for the number of heads, half power 1 for the number of tails. 4C3 4 आएगा, इसका total 1/16. So this will be 4/16. And finally if I need 4 heads, it will be half into half into half into half, and that is 1/16. And finally if they ask you a formula, that is probability of getting r number of heads, you can have r number of heads in 4CR ways. Half power r is the probability of getting r heads, and half power 4 minus r is the probability of getting remaining number of tails. Total करेगा तो ये आएगा 4CR upon half power r into half power 4 minus r is half power 4. half power 4 मतलब डिनोमिनेटर में 16 आएगा. So yes, that's your final probability of getting r number of heads. Final probability formula to get r number of heads. Okay, so let's continue with sum number 7. Find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die, where a success is defined as a number greater than 4 appearing on a die. So पहले पार्ट के लिए probability distribution ढूंढना मतलब वो टेबल ही बनाना है of values taken by the random variable which is x versus their probabilities. अब x मतलब define करेंगे as number of successes. पहले वाले में क्या बोला कि नंबर ग्रेटर देन 4 appears on at least one die. नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 5 या तो 6. सक्सेसेस आ सकता है या तो 0 या तो 1 या तो 2, बिकॉज यू आर टॉसिंग अ डाई 2 टाइम्स. सो अगर 2 बार डाई टॉस करेगा तो सक्सीड या तो 0 टाइम्स होगा या तो 1 टाइम होगा या तो 2 टाइम होगा. सो नंबर ऑफ सक्सेसेस टेक्स द वैल्यूज 0 1 2. व्हेन आई से 0 सक्सेसेस मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 एक भी बार अपियर ही नहीं हुआ. एक भी बार अगर नंबर ग्रेटर देन 4 अपियर नहीं हुआ मतलब दोनों टाइम जो नंबर आया वो 1 2 3 4 में से ही आया. 1 2 3 4 फर्स्ट डाई पे आने का प्रोबेबिलिटी 4/6, सेकेंड डाई पे सेम प्रोबेबिलिटी. कैलकुलेट करेगा 16/36 और रिड्यूस करेगा तो 4/9. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन सक्सेस मतलब पहले डाई पे 5 6 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 2/6. सेकेंड डाई पे 1 2 3 4 मतलब प्रोबेबिलिटी 4/6 और मतलब प्लस. फर्स्ट डाई पे तेरा नॉन सक्सेस मतलब 4/6, सेकेंड वाले पे सक्सेस मतलब 2/6. ऐड करेगा मल्टीप्लाई करेगा मतलब दिस विल बी 8 + 8 16 अपॉन 36. उसे भी रिड्यूस करेगा तो ये भी आने वाला है तेरा 4/9. एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस. दोनों सक्सेस मतलब दोनों टाइप पे या तो 5 या तो 6 आएगा. पहले पे 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, दूसरे पे भी 2/6. आंसर आएगा 4/36, रिड्यूस करेगा 1/9. सिमिलरली सेकंड ले ले. द नंबर 6 appears on at least one die. वापस रैंडम वेरिएबल वही होगा, नंबर ऑफ सक्सेसेस. एंड नंबर ऑफ सक्सेसेस वंस अगेन कैन ईदर बी 0 1 2. इस बार टेबल हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूं. वंस अगेन आप अगर एग्जाम्स में ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकली ड्रॉ करना. So this here is p of x and the possible x values we discussed are 0 1 2. 6 appears on at least one die. मतलब अगर 0 सक्सेसेस आया तो दोनों डाइस पे तेरा नॉन 6 आएगा. फर्स्ट डाई पे नॉन 6 का प्रोबेबिलिटी 5/6, सेकेंड पे भी 5/6, तो 25/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस. तो ये आ गया तेरा 25/36. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6 तेरा कभी आ सकता है. इट कैन ईदर कम इन द फर्स्ट टॉस और इट कैन कम इन द सेकेंड टॉस. तो ये आएगा 1/6
इंटू 5/6 मतलब 6 ऑन द फर्स्ट टॉस, नॉन 6 ऑन द सेकेंड टॉस, प्लस 5/6 इंटू 1/6 मतलब नॉन 6 इन द फर्स्ट टॉस एंड 6 इन द सेकेंड टॉस, मल्टीप्लाई कर, ऐड कर, तेरा आंसर आएगा 10/36। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s, ये क्लियरली आएगा तेरा 1/6 इंटू 1/6 बिकॉज इन बोथ द टॉसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज 1/6. So this probability is finally 1/36. And yes, that completes your probability distribution table for the second part. Continue कर sum number 8 के साथ. A random variable x has the following probability distribution. Determine k. तो वापस वही बात, k determine करने के लिए total probability 1 लेना होगा. So the total probability is k, 2k, 3k, 3k. यहां तक ऐड करेगा तो ये तेरा आ गया 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, सो 3k स्क्वायर प्लस 8k एंड और ऐड कर 7k स्क्वायर प्लस k, तो ये आ जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल टू 1. सिंप्लीफाई कर, सो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0. मिडल टर्म स्प्लिट कर, सो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0. फैक्टराइज करेगा तो पहला टर्म यहाँ से 10k कॉमन आएगा और यहाँ से तेरा माइनस 1 कॉमन आएगा. So this becomes 10k minus 1 into bracket में बचेगा k plus 1 equal to 0. So k will either be 1/10 or k will be equal to -1. Clearly k equal to -1 possible नहीं है, क्योंकि k को अगर -1 तू यहाँ पे डालेगा तो सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो k भी -1 पॉसिबल नहीं हो सकता है. सो इवेंचुअली तेरा k का जो वैल्यू आएगा वो 1/10 आएगा. सो डिटरमाइन k का पार्ट हो चुका है. नाउ वी वांट p ऑफ x ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 मतलब 6 एंड सॉरी ग्रेटर देन 6 मतलब ओनली 7 एंड ओनली 7 का तेरा प्रोबेबिलिटी आएगा 7k स्क्वायर प्लस k. सो यस, दिस इज 7k स्क्वायर प्लस k. k को डाल 1/10 तो ये आएगा 7/100 प्लस 1/10, एलसीएम ले ले 17/100 और डेसिमल में लिखेगा तो 0.17. आगे बढ़, p ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 एंड 3, दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2. इसका आंसर आने वाला है 3k. k को 1/10 डाल तो ये आएगा 3/10 एंड द फाइनल आंसर इज 0.3. यस, दैट्स इट विद सम नंबर 8. आगे बढ़ सम नंबर 9. अब सम नंबर 9 में नोटिस कर, इन्होंने तुझे x दिया बट साथ में इन्होंने तुझे px नहीं fx का टेबल दिया. fx मतलब cdf. इस सम में हमें सीखना है कि cdf में से प्रोबेबिलिटी का जो टेबल रहेगा वो निकालना कैसे है. बेसिक जो उन्होंने टेबल दिया है वो दोबारा लिख ले. सो x वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. एंड यहाँ पे तेरे fx के वैल्यूज विच आर 0.1, 0.3, 0.5, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, सॉरी 0.9 एंड 1. px के लिए फर्स्ट वैल्यू तू एज इट इज ऐसे ही लिख लेगा. यहां का वैल्यू चाहिए तो यू बेसिकली सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स. तू याद कर px में से fx कैसे आया था, बस वही लॉजिक रिवर्स में अप्लाई कर. यू विल रियलाइज व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग द टू नंबर्स. तो इन दो नंबर्स को माइनस करेगा तो 0.2, माइनस कर वापस इधर 0.2, इधर माइनस कर 0.15, इन दो को माइनस कर तो 0.1, माइनस कर 0.1, माइनस कर 0.05 एंड इनको माइनस कर, लास्ट प्रोबेबिलिटी तेरा आएगा 0.1. बस एक बार तेरा पीएमएफ का टेबल बन चुका है, मतलब एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर तू आसानी से दे पाएगा. एक चीज नोटिस कर, इन्होंने बोला था फाइंड पीएमएफ ऑफ एक्स. तू कहेगा पीएमएफ मतलब इट वाज अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. आई विल से करेक्ट, बट उस पॉइंट पे जब मैंने पढ़ाया मैंने ये भी कहा था कि टेक्स्ट बुक इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करेगा. मतलब टेक्स्ट बुक पीडीएफ भी बोलेगा, पीएमएफ भी बोलेगा, बट फ्रॉम अवर साइड व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म्स वी विल कीप इट वेरी क्लियर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो एक्स का हमें प्रोबेबिलिटी देगा.
सो फिलहाल के लिए व्हाट वी हैव फाउंड इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि उन्होंने कहा था फाइंड पीएमएफ ऑफ एक्स, बट इट इज टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑल दे वर आस्किंग अस वर द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं. आगे बढ़ विद द क्वेश्चन. We need probability of -1 less than equal to x less than equal to 2, means probability of x being -1, 0, 1 and 2. -1, 0, 1 and 2. Add up the numbers. 0.2 plus 0.15, 0.35, 0.45, 0.55. That's it with sum number 2 का solution. And sorry, sum number 1 का solution. सब part 2 के solution के लिए p of x less than equal to 3, given that x greater than 0. अब अगर प्रोबेबिलिटी का थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थियरी अगर याद है, इसका फॉर्मूला होता है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाय p ऑफ x ग्रेटर देन 0. अब लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 0 मतलब आई नीड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ x बीइंग 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3 मतलब 0.1, 0.1 एंड 0.05, ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 2, 3, 4. सो इन प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज को ऐड करके आएगा 0.35. रिड्यूस करेगा तो ये बनेगा 25/35 एंड फाइनल फ्रैक्शन आएगा 5/7. दैट्स योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. एक्सीलेंट. आगे बढ़ सम नंबर 10. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल x whose PMF is given as follows. So first वाला टेबल बना ले. I hope you remember the theory. इस केस में तुझे 5 कॉलम्स बनाने होंगे. You will write the first column as x, second as px, third as x into px, then x square, and then finally x square into p of x. The values are 1, 2, 3. Probability values are 1 by 5, 2 by 5, 2 by 5. Start multiplying the numbers. So x px will be 1 by 5, this will be 4 by 5, and this will be 6 by 5. X square के values 1, 4, 9, then x square into px is 1 by 5. Similarly this will be 8 by 5. Similarly this will be 18 by 5. And yes, finally we need e of x. E of x मतलब इनका टोटल ये आएगा 11/5. And then we need variance of x. That is summation x square px. ये तेरा आने वाला है 27 by 5 minus the square of e of x, which is 121 by 25. LCM ले ले. 27 into 5 is 135. 135 minus 121 is 14. तो ये आएगा 14/25. एंड फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन इज प्लस माइनस रूट वेरिएंस, जो कि आएगा प्लस माइनस रूट 14/25. 25 का रूट 5 है, उसे हम रूट के बाहर लिखेंगे. दैट्स इट विद सम नंबर 1. सिमिलरली सम नंबर 2 ले ले. वही बात वापस तेरा टेबल्स बना ले. x px, x px, x square and x square px. So x and px, I believe यहाँ से तू रेफर कर पाएगा. I'll just write the columns of x px, x square and x square px. So x px करेगा, it's minus 1 by 5, then it is 0 and then it is 2 by 5. X square is 101 and x square into px मतलब it will be 1 into 1 by 5, 0 into 2 by 5 which is 0 and 1 into 2 by 5 which is 2 by 5. वही बात e of x is summation of x px, तो इसका आएगा तेरा 1 by 5 and variance of x will be summation x square px जो कि आएगा 3 by 5 minus इसका स्क्वायर मतलब 1 by 25. टेक एन LCM अगेन. 3 5s are 15, 15 minus 1 is 14, तो ये 14 by 25 आ गया. एंड फाइनली योर स्टैंडर्ड डिविएशन इज प्लस माइनस रूट वेरिएंस मतलब प्लस माइनस रूट ओवर 14/5. गो अहेड सम नंबर 3. अब इसमें इतने सारे वैल्यूज का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा तेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर. e of x मतलब समेशन xp of x, that will be 1 into 1/n plus 2 into 1/n plus 3 into 1/n plus so on up to n into 1/n. नोटिस करेगा तो 1/n सब में से कॉमन आएगा. ब्रैकेट में बचेगा 1, 2, 3 so on up to n. 1 to n का जो टोटल होता है इट इज n plus 1/2. तो ऊपर नीचे n कट कर पाएगा
एंड फाइनली द लेफ्ट ओवर टर्म्स आर n+1 अपॉन 2. तो ये तेरा e ऑफ x आ गया. सिमिलरली वेरिएंस ऑफ x निकाल, दैट विल बी समेशन x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, मतलब 1 इंटू 1 अपॉन n, 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n, 3 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n. सब में से तेरा 1 अपॉन n कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर हमने माइनस किया. दिस इज 1 अपॉन n, n+1 2n+1 अपॉन 6. इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था सीक्वेंसेस सीरीज में, माइनस दिस इज सिंपली n+1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर. इसमें n और n कट होगा. यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स हियर, दैट शुड गिव यू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस दिस इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4. So that gives us variance of x as, LCM लेगा ना तो डिनोमिनेटर कॉमन तेरा 12 आएगा. नाउ 12 इज द LCM, सो ये फर्स्ट टर्म पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इंटू 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर विल कीप इट n स्क्वायर. इसको इंटू 2 किया तो 6n, इसको इंटू 2 किया तो 6n वापस, सॉरी इसको इंटू 3 किया तो 6n आएगा, तो 6n माइनस 6n विल बी 0. इसको इंटू 2 किया तो प्लस 2, इसको इंटू 3 किया तो प्लस 3. नाउ 2 माइनस 3 विल मेक इट माइनस 1. सो फाइनली वेरिएंस इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 एंड दैट गिव्स मी स्टैंडर्ड डिविएशन एज प्लस माइनस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. यस, दैट्स इट विद सम नंबर 3. थोड़ा यहाँ पे सीक्वेंसेस सीरीज का यूटिलाइज हुआ था, बट आई एम श्योर दैट यू रिमेंबर द रिजल्ट्स वेल. आगे बढ़ सम नंबर 4. दोबारा टेबल नहीं बनाते हैं, टाइम पास हो रहा है उसमें. e ऑफ x सीधा ही निकाल, 0 इंटू 1/32 इज 0 प्लस 5/32 प्लस 20/32 प्लस मल्टीप्लाई कर इनको भी 30/32 प्लस 20/32 प्लस 5/32. Yeah, so this is 20, 30, 50, 70. 5, 5 is 10, so 70 and 10, 80, 80/32. 8 से डिवाइड करेगा, so that is 10/4 and that makes it 2.5. वेरिएंस निकाल, वेरिएंस के लिए इट इज x स्क्वायर इंटू p ऑफ x. एक नोटिस कर, p ऑफ x में से 1/32 तो कॉमन आने ही वाला है. ब्रैकेट में नंबर्स आएगा 0 इंटू 1 विच इज 0 प्लस 1 इंटू 5 विच इज 5 प्लस, याद रखना x स्क्वायर इंटू p ऑफ x है, तो 4 इंटू 10 40 आएगा प्लस 9 इंटू 10 90 आएगा, 16 इंटू 5 80 आएगा प्लस 25 इंटू 1 25 आएगा माइनस 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 90 और 80 170 प्लस 40 210, 210 प्लस 30 इज 240, सो आई हैव 240/32 माइनस 6.25. इसको भी अगर 8 से कट करेगा तो ऊपर आएगा तेरा 30 और नीचे आएगा तेरा 4. 30/4 कर, दैट इज 7.5 माइनस 6.25 एंड फाइनली तेरा वेरिएंस आ गया 1.25 एंड दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज प्लस माइनस रूट वेरिएंस विच इज प्लस माइनस रूट ओवर 1.25. विद दैट वी फिनिश सम नंबर 4. आगे बढ़, सम नंबर 4 ऑफ द 10th मेन क्वेश्चन. आगे बढ़, सम नंबर 11. A player tosses 2 coins. He wins 10 rupees if 2 heads appear, 5 rupees if 1 head appears and 2 rupees if no head appears. Find the expected winning amount and variance of the winning amount. So clearly हमारा random variable is the winning amount. Expected value के लिए वो 5 columns बनाना पड़ेगा. Basically you need the probability distribution. So the first column x, second one px, third one x square, third one x px, then x square and then x square px. The possible gains are 10, 5 and 2. So यहाँ पे आएगा 10, 5 and 2. p of x, 10 रुपीज जीतने के लिए 2 हेड आना चाहिए एंड 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी आएगा 1/4. 5 रुपीज जीतेगा फॉर 1 हेड एंड 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/4 एंड
₹2 जीतेगा इफ नो हेड अपियर्स। नो हेड अपियर होने का प्रोबेबिलिटी भी 1/4। कंप्लीट द टेबल, इट्स 10/4, 10/4 एंड 2/4। एक्स स्क्वायर आएगा 100, 25 एंड 4। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स विल बी 100/4, 25 इंटू 2 मतलब 50/4 एंड 4 इंटू 1/4 इज सिलिक 4/4। गो अहेड, वी हैव ई ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स पी एक्स। ये आएगा 22/4 विच इज इक्वल टू 5.5 एंड देन गो अहेड विद वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स विच इज 154/4 माइनस द स्क्वायर ऑफ दिस। 5.5 का स्क्वायर आएगा 30.25, 154/4 कर ले, सो दिस इज 3, 8.5 minus 30.25 and the final variance turns out to be 8.25 and the standard deviation is plus minus root of variance which is plus minus 8.25। बढ़ते हैं सम नंबर 12 के साथ। Let the PMF of a random variable be P of x equal to 3 minus x upon 10। x के वैल्यूज भी दिए हैं। कैलकुलेट e of x and variance of x। दोबारा टेबल वेबल बनाने मत जा, बेसिक तेरा कैलकुलेशन कर ले। e of x was summation x p of x, x मतलब -1 और उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 3 माइनस -1 मतलब 4/10। सो -1 इंटू 4/10 विच इज -4/10 प्लस 0 इंटू एनीथिंग तू करेगा तो वो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 1 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 3 माइनस 1 मतलब 2/10। 1 इंटू 2/10 इज 2/10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी निकालेगा 1/10 आएगा, सो दिस इज अगेन 2/10। एड अप ऑल द नंबर्स, ये तेरा आंसर आएगा 0। सो ई ऑफ एक्स तेरा 0 आ गया। आगे बढ़, वेरिएंस ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड बाय समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 1 आएगा और उसका प्रोबेबिलिटी 4/10 था, सो 1 इंटू 4/10 इज 4/10 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, इंटू एनीथिंग विल बी 0 ओनली, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 2/10, सो ओवरऑल आंसर आ गया 2/10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 2 का प्रोबेबिलिटी 1/10, सो ये आ जाएगा 4/10 माइनस ये तेरा समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स हो गया माइनस ई ऑफ एक्स मतलब 0 का स्क्वायर, सो ये टोटल आएगा तेरा 4 2 4 मतलब 10, 10/10 इज 1 एंड द फाइनल आंसर वेरिएंस तेरा 1 आएगा। या दैट्स इट विद सम नंबर 12। आगे बढ़, सम नंबर 13। Suppose error involved in a certain measurement is a continuous random variable with PDF given over here for x lying between -2 and 2, otherwise it is equal to 0. Compute P of x greater than 0। अब पहले तो सबसे पहले k निकालना पड़ेगा और k निकालने का एक ही तरीका है, टोटल प्रोबेबिलिटी करके। सो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट -2 टू अपर लिमिट 2। ये टोटल इंटीग्रेशन तेरा 1 आना चाहिए। k आएगा बाहर, 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x और जैसे ही तू लिमिट डालेगा 2 माइनस -2 दैट इज गोइंग टू बी 4, सो 4 इंटू 4 इसका वैल्यू आएगा 16 माइनस x³/3। x³ में भी तू ये 2 और ये -2 पुट कर, जैसे ही पुट करेगा वैसे 8 माइनस -8 16 आएगा, सो ये वैल्यू आएगा -16/3, सो k इंटू दिस विल बिकम 32/3 एंड वो 32/3 राइट में लिया तो k का वैल्यू आ जाएगा 3/32। ये हमने k निकाला। अब तेरे पहले पार्ट का आंसर P ऑफ x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब इंटीग्रेट होगा 0 से लेके 2 तक एंड फंक्शन वही रहेगा k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। k मतलब 3/32 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3/32 बाहर ले ला, 4 का इंटीग्रेशन 4x और उसमें 2 और 0 डाल दें तो उसका वैल्यू आएगा 4 इंटू 2 जो कि आएगा 8 माइनस x³/3। x³/3 में तू दोबारा 2 और 0 को डाल दे, सो दैट विल गिव यू 8/3, सो 8 माइनस 8/3 ये आ जाएगा 16/3। ऊपर और नीचे 3 कट होगा, 16 एंड 32 भी कट होगा, तो फाइनल आंसर तेरा आ जाएगा 1/2। सो यस, P ऑफ x ग्रेटर देन 0 टर्न्स आउट टू बी 1/2। आगे बढ़ with the next part which is P of x lying between -1 and 1. So that probability will be obtained by integrating the same function from -1 to 1. The function is k मतलब 3/32 and वही तेरा 4 minus x square.
इंटीग्रेट करेगा तो 3/32, पहला टर्म आएगा 4x, उसमें डाल दे तेरा 1 और -1, सो दैट विल बी 4 इंटू 1 माइनस -1, मतलब 4 इंटू 2, इसका वैल्यू आएगा 8, माइनस x³/3, x³ में डाल 1 और -1, तो इट विल बी 1 माइनस -1 विच इज अगेन 2 एंड अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेगा तो 24 माइनस 2 मतलब 22 अपॉन 3, वो 3 और 3 कट हो जाएगा क्योंकि बाहर भी एक 3/32 था, और 22 अपॉन 32 आएगा 11 अपॉन 16। गो अहेड, p ऑफ x लेस देन 0.5 और x ग्रेटर देन 0.5। ओके, स्लाइड करेक्शन इन दैट पार्ट, इसमें इसको लेना होगा -0.5, बिकॉज अगर रेंज देखेगा तो -2 से 2 तक का रेंज है। सो व्हेन आई से x लेस देन -0.5, इट मींस तेरा x जो रहेगा वो -2 और -0.5 के बीच में होगा। और दूसरे केस में अगर x ग्रेटर देन 0.5 बोला तो उस केस में x तेरा रहेगा 0.5 से लेके 2 तक। सो यस, द थर्ड प्रोबेबिलिटी, थर्ड वाला, the probability will be obtained by integrating tera fx only, which is 3/32 4 minus x square dx from -2 to -0.5 plus integration 0.5 से लेके 2 तक 3/32 and 4 minus x square। ग्रेट, 3/32 को टोटल बाहर ही रहने दे, 3/32, 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4x माइनस x³/3, दिस गोज फ्रॉम -2 टू -0.5 प्लस आएगा तेरा 4x माइनस x³/3, again going from 0.5 up to 2. This is equal to 3/32. Okay, when you put a -0.5 here and then minus 2, so -0.5 plus 2 1.5 आएगा, 4 into 1.5 will be 6, and थोड़ा यहां से भी अगर सोच सकता है, so it's going to be 2 minus 0.5 which is 1.5 and 4 into 1.5 दोबारा एक 6 आएगा, so total तेरा 6 plus 6 आ गया, and that is going to make it 12. So एक यहां पे तेरा 12 आएगा। Yes, go ahead. When you put -0.5 here, तो -0.5 is, think of it as -1/2, -1/2 का क्यूब -1/8 और -2 का क्यूब -8, so -1/8 minus -8, that makes it -1/2 plus 8, sorry, -1/8 plus 8, -1/2 का क्यूब -1/8 and -2 का क्यूब -8, so -1/8 minus -8 making it -1/8 plus 8. Yeah, if you add up these two terms, ये तेरा आ जाएगा 63/8 एंड बाहर एक अपॉन 3 भी है बिकॉज इट वॉज x³/3, तो 63 वहां पे तेरा कट हो जाएगा एंड दैट शुड गिव यू 21/8। सो 21/8 यहां से आएगा, in fact it will be -21/8 because of this minus, so yes I have -21/8। similarly 2 cube, तो वो आ जाएगा 8 and 0.5 का क्यूब is 1/8, so 8 minus 1/8 is again 63/8 और by 3 करेगा तो 21/8 आएगा, और ये वाला टर्म भी जो है वो माइनस के साथ रहेगा, so it's 21/8 minus 21/8। इनको अगर साथ में ही लिखना है तो you can actually write it as 21/4। So yes, it finally comes down to this, and अगर simplify करेगा तो that's 48 minus 21 which is 27, so it's 3 into 27 upon 32 into 4, and ये final तेरा probability निकल के आता है 81/128। Yes, that's your calculation for the third part, slightly longer than the earlier sums, but it's okay, इतना कुछ बड़ा नहीं था। Let's go ahead, sum number 14. The PDF of a random variable is given by a certain formula, x lying between 0 and 2a. You have to show that p of x less than a/2 is p of x greater than 3a/2. वही बात, p of x less than a/2 obtained by integrating the function which is 1/2a from lower limit which is 0 up to the required value which is a/2. 1/2a खुद एक कांस्टेंट है, फिर ये जैसे ही इंटीग्रेशन के बाहर आया वैसे इंटीग्रेशन के अंदर नंबर 1 बचेगा, एंड 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, when you put in the limit 0 to a/2 it becomes a/2 minus 0 which is a/2 only.
सो यहाँ पे आ जाएगा a by 2 minus 0, and when you cancel it off it finally becomes equal to 1 upon 4. Similarly निकाल p of x greater than 3a by 2. इसके लिए तू इंटीग्रेट करेगा 3a by 2 से अपर लिमिट तेरा 2a है, and the function you are integrating is 1 upon 2a. So 1 upon 2a once again is a constant. It has to come out of the integration, and integration 1 x आएगा, वहां पे जाएगा 2a minus 3a by 2. So 2a minus 3a by 2 is again a by 2. So this also turns out to be 1 by 4. Conclusion, p of x less than a by 2 is equal to p of x greater than 3a by 2. Yes, we have proved whatever they were asking us to prove, and with that we proceed with the last sum of our miscellaneous exercise. PDF of a random variable x is given by a certain function and the range of x is also given. कहने का मतलब है k का वैल्यू तेरा टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा. डिटरमाइन k, एक्सीलेंट, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. तो पहले k ही डिटरमाइन कर लेते हैं. सो k by root x dx इज द फंक्शन. इंटीग्रेट करना होगा 0 से 4 में टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, एंड दिस विल बी इक्वेटेड विद 1. k इज अ कांस्टेंट, वो तेरा बाहर आएगा. सो k 1 अपॉन रूट x इज x पावर माइनस हाफ. इंटीग्रेट करेगा तो x पावर हाफ अपॉन हाफ विच इज बेसिकली 2 रूट x. सो 2 इंटू रूट x और उस पे तेरा लिमिट लगा ले 0 से 4. जैसे ही 4 और 0 यहाँ पे पुट करेगा इट विल बिकम 2 माइनस 0 विच इज 2 इंटू ये बाहर का 2 विच मेक्स इट 4. सो 4k इक्वल टू 1 एंड k इज फाइनली 1 by 4. ओके, डिटरमाइन CDF ऑफ x. CDF का सीधा सीधा फॉर्मूला था f of x which is p of x less than equal to x, again obtained by integrating from the lower limit which in this case will be 0 up to x, and integrate करने वाला फंक्शन होगा k by root x. ओके, सो k एक बार वापस बाहर आएगा. 1 by root x का इंटीग्रेशन we just saw it is 2 root x. सो k into 2 root x. तो ये लिमिट भी अप्लाई कर देगा तो फाइनली इट विल बी रूट एक्स माइनस रूट 0 विच इज रूट एक्स ओनली. एंड अभी k का वैल्यू डाल विच इज 1 by 4. 1 by 4 एंड ये 2 आपस में कट होंगे. सो दैट लीव्स यू विथ रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2. ये तेरा fx आ गया. Hence find p of x less than equal to 2. So p of x less than equal to 2 is basically f of 2 by definition. f of 2 मतलब इसमें बस x को 2 डालना है. So once you put x as 2, it becomes root 2 by 2 which is 1 by root 2. And then you need p of x less than equal to 1. This will be f of 1 by definition. And जैसे ही तू 1 यहाँ पे डाल देगा वैसे ही इसका वैल्यू आ जाएगा 1 by 2. So yes, that's it with all sums of probability distribution from the Maharashtra government textbook. I hope that whatever videos I've made, whatever lectures we have taken, somewhere, someplace in your preparation, it has helped you. Thank you for watching.